Hello all. Today we are discussing about the pop-up button menu. We are designing here one button, and by clicking on that button there are again certain options available to choose something. So we can call it as the pop-up button menu. Generally the only button is only the one click event, but we are going to add the on that click event another 3 to 4 events. Just see, to create the pop-up menu button we have to first create one menu. We have to design one more XML file over here. So this XML file is for the application, this Java file is for the application, but for the menu designing. So if there is a one button and we have two or three menu on that button, so we have to again design a menu in a different XML. So for that we are here. This is the app. By clicking on this app you have to click on this resource, right click on this resource and click on new Android resource directory. You have to create a new Android resource directory. We have to give a name to the directory as a menu, because the directory is menu. And again into that particular directory we have create the menu XML. So right click on this menu, click on this new button, and here menu resource file is there. You have to click this menu resource file, and again you have to give the same name. You have to give the menu name again. For simplicity we are giving a same name. So if when we are in resource folder, if we check off layout, so our application XML file is resides in this layout folder, and the menu, whatever be the menu we are going to design over here, that menu is reflected in our application. So to design a menu we have to so this is the XML form of that menu, and we have to just click and drag and drop that menu items over here. So this is the item first, and here we are going to, that is poly is my first item. If I drag and drop the second item, then wait, this is my poly is my first item. Coe is my second item, and MMIT is my third one. So whenever I click on that particular button, these three options are likely to be there, because we are attaching these three options to that particular button. And after clicking on that button, this three option is there, and you can choose any one option from them. Okay, so this is called as pop-up button. Again, in the next practical also we are going to see there are three dots here. Okay, so this is the nothing but a menu, but we are first designing this menu bar for a button, and then we are going to design this menu bar for a particular page. Okay, so first for practical is designing a menu bar for a particular button, that is a pop-up button menu. So here we have attached, you can attach n number of button over here. Okay, here we attached the 4 buttons. Okay, so this work is done now. Come to the activity main XML. So this is my main XML. I just want a particular text box, that is a particular text box to show my text. Which project is this? So this project is pop-up button menu. As expected, we have to change the attributes also. Okay,
just I need a one button over here. That's it. And I given that button name as a menu. So whenever I click on this menu button, that all four menu happens over here. That is my aim. So let's move towards the Java programming. So this is done right now. Just let's move towards the Java programming. So here first I'm going to create whatever the things which I have used. That is a button I have used. So button B1 is there. ओके अगर ऐसा रेड कलर में आया तो इसका मतलब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज अल्ट एंटर. प्लीज यूज इंपोर्ट क्लास. सो ऑटोमेटिकली दिस क्लास इज इंपोर्टेड ओवर हियर. जनरली अपने आप ले लेता है, लेकिन नहीं लिया तो यू कैन प्रेस अल्ट एंटर. ओके एंड एट हियर वी हैव टू जस्ट ऐड वन मेथड, ओन मेथड, and after that the public, after that this is my own method. Okay, just try to understand. You have to add public public void click into that particular click. I have to write the code. First one, I have to import that button B1. So B1 is the button. Find view by ID, r dot id dot, it is a button, semicolon. Okay, this B should be capital. Again, when so for the click event I have to use b1 dot set on click listener and new view on click listener. So in this area I have to write the code for that pop-up menu. Means जब बटन पे क्लिक होगा तब pop-up menu आना चाहिए. So that's why I have to use the pop-up menu is the my inbuilt class. The object is pop-up. Pop-up menu is my inbuilt class. The object is pop-up. I used a new keyword and I pop up the all. But I have to pass some parameters. That is this pop-up menu is used to likely on this main activity dot this. इसका मतलब है कि ये इस एक्टिविटी के लिए ही ये काम करेगा और ये काम करेगा इस बटन के लिए. So I have to give a two parameters in this pop-up menu कि कहाँ पे ये pop-up menu चाहिए आपको. That is the main activity. This is my main activity and डॉट दिस. ये जो क्लास है मेरा जावा का जो मेन एक्टिविटी का नाम है उस मेन एक्टिविटी में मुझे चाहिए डॉट दिस और b1 के ऊपर चाहिए. ये हो गया मेरा पॉपअप का एक सिंपल सा कोड. अब करेंगे ये तो बस बाइंड ये तो बस मैंने न्यू एरिया यानी कि न्यू स्टोरेज क्रिएट किया हुआ है मेमोरी में. बस मेमोरी को भी पता है कि क्लिक करने के बाद 3 मेनू को लोड करना है, लेकिन क्या लोड करना है उसके लिए हमें उसको देना पड़ेगा. जैसे कि पॉपअप इज माय ऑब्जेक्ट नेम, तो पॉपअप के साथ बताना पड़ेगा पॉपअप डॉट गेट मेन्यू इन्फ्लेटर. उसको बताना पड़ेगा डॉट इन्फ्लेट करो किसे इन्फ्लेट करो. आर के अंदर जो मेनू नाम का फोल्डर है उसके अंदर जो मेनू नाम का फाइल है उसको इन्फ्लेट करो. इन्फ्लेट करने के बाद पॉपअप उस ऑब्जेक्ट को वो गेट मेनू लगा दो. ठीक है. द सिंपल कोड, द कोड इज लाइक दिस. फिर से बताता हूँ. पहले हम लिखेंगे पॉपअप मेनू. ये मेरा इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, इनबिल्ट मेथड है. इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पॉपअप नाम का. ठीक है. पॉपअप नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इससे क्या होगा, मेरा स्टोरेज क्रिएट होगा, लेकिन किसके लिए वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो ये मेरा काम करेगा मेन एक्टिविटी के लिए और इस b1 बटन के लिए. ठीक है. और फिर द नेक्स्ट लाइन इज कि पॉपअप डॉट मेन्यू इन्फ्लेटर. ये दिस इज लाइन
इट्स अ वेरी मच सिंपल पॉपअप डॉट गेट मेनू इन्फ्लेटर कि ये जो पॉपअप है इसके लिए मुझे गेट मेनू इन्फ्लेटर चाहिए और इन्फ्लेट करो. दिस इज डॉट इन्फ्लेट मीन्स दिखाओ. क्या दिखाओ, कहाँ से दिखाओ? सो आर रिसोर्स फोल्डर के अंदर जो मेनू नाम का फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर जो मेनू नाम का मेरा XML का फाइल है वो फाइल दिखाओ और उस पॉपअप के साथ उसको गेट मेनू कर दो. इससे हमारा गेट मेनू ओपन हो जाएगा. ठीक है, सिंपल है. और एट द लास्ट जैसे मेरा गेट मेनू ओपन होता है मुझे करना पड़ेगा पॉपअप डॉट शो कि वो जो किया है मैंने काम उसको शो करो. जस्ट सेव इट एंड बिल्ट APK. इससे क्या होगा, इससे बस हमारा बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा मेनू दिखेगा, लेकिन मेनू को मैं क्लिक नहीं कर सकता बिकॉज मैंने क्लिक इवेंट किसके ऊपर लिखा है, बटन के ऊपर. अगर मुझे उस बटन के अंदर जो 3 या 4 मेनूज़ है उनके ऊपर भी अगर क्लिक इवेंट लिखना है तो उनके लिए सेपरेटली क्लिक इवेंट्स मुझे लिखने पड़ेंगे. तो पहले हम ये टेस्ट करेंगे कि हमारा ये प्रॉपरली रन हो रहा है या नहीं. So this is my application. इट्स ओके अबाउट द थिंग्स. मैंने रिलेटिव लेआउट नहीं लिया हुआ है. सो जस्ट मेनू के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे आइटम्स आ गए हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द एम, दैट इज़ जब भी मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा उसके नीचे मेरे मेन्यूज़ आने चाहिए. फिर मैं फॉर एग्जांपल इफ़ आई क्लिक ऑन दिस MM-Poly देन व्हाट विल द एक्शन विल बी देयर. MM-COE को क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन होना चाहिए, MMIT को क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन होना चाहिए और आइटम को क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन होना चाहिए. वो फिर बाद में का कोड है, लेकिन सिंपल पॉपअप मेनू डिज़ाइन हम इस प्रकार से कर सकते हैं. हम हमारे XML के पास जाएंगे. ये जो मेन्यू इसका बटन है, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम इस पॉपअप मेनू बटन. थोड़ा अच्छा दिखने के लिए कर रहा हूँ. टेक्स्ट का साइज 18 एंड टेक्स्ट का कलर आई वुड लाइक टू यूज नेवी ब्लू, दैट्स व्हाई. एंड बटन मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. अभी मैंने वहाँ पे बटन यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इसका आईडी है बटन 2. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये प्रोजेक्ट मुझे रन करना है रिवर्स इंजीनियरिंग में तो मुझे इसका आईडी भी बटन ही रखना पड़ेगा. ठीक है, जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं. बिल्ड APK, लोकेट इट, run it. So this is the how it will look, pop-up menu button, and this is the menu button. I have just click on this menu and all the menu will happen over here. And the next task is कि MM-Poly के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, MM-COE के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, MMIT के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा एंड आइटम के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा. अलग अलग लॉजिक अलग अलग रहेगा. आप स्विच स्टेटमेंट्स भी ले सकते हैं कि इफ़ MM-Poly इज क्लिक व्हाट विल हैपन इफ़ स्विच स्टेटमेंट में, या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट भी ले सकते हैं इफ़ MM-COE क्लिक. फिलहाल तो हम सिंपल स्टेटमेंट लेंगे कि एक ही बार हम टॉस मैसेज में अगर MM-Poly क्लिक किया है तो नीचे मैसेज आएगा MM-Poly इज क्लिक. MM-COE क्लिक किया हुआ है तो नीचे मैसेज आएगा MM-COE इज क्लिक. अ सिंपल मैसेज, अ टॉस मैसेज. लेकिन उसके लिए मुझे कोड में ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे. सो अभी मुझे क्या करना है कि क्लिक इवेंट तैयार करना है, बिकॉज B1 के ऊपर तो हमने क्लिक कर दिया है. अब MM-Poly के ऊपर क्लिक करने के बाद या फिर उन मेन्यू बार में जो भी 4 चीज़ें हैं
उनमें से जहाँ पर भी क्लिक किया जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो इसलिए मुझे क्लिक इवेंट को रिकॉर्ड करना है। सो दैट्स व्हाई मैं करूँगा कि पॉपअप डॉट सेट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिस्नर। ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि पूरा मेनू आइटम लिसनर करेगा, फिर उस मेनू आइटम जितने आइटम है उनके ऊपर कहाँ पर भी अगर क्लिक हुआ ना तो ये उसको लिसन कर लेगा। इसके लिए मैं एक नया मेथड इसमें डालूंगा, जैसे कि न्यू पॉपअप मेन्यू डॉट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर। जैसे मैंने B1 के लिए सेट ऑन क्लिक लिसनर और ऑन क्लिक लिसनर लिया था, वैसे यहाँ पे पॉपअप डॉट सेट ऑन क्लिक मेनू आइटम क्लिक लिसनर एंड ऑन मेनू आइटम क्लिक लिसनर, कि अभी यहाँ पे आपको कोड लिखना पड़ेगा और यहाँ पे इसको ट्रू करना पड़ेगा। इसके अगर इसको ट्रू किया तो वो दिखाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे मुझे बस टोस्ट मैसेज लिखना है अभी, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। तीन पैरामीटर होते हैं ना, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉमा, अब ये नेक्स्ट पैरामीटर है यू क्लिक्ड। अब हम वो जो भी क्लिक किया हुआ जो एरिया है वो हम जावा का एक एरिया, जैसे कि आइटम डॉट गेट टाइटल, इससे देखो यहाँ से मुझे वो मैं जो भी क्लिक करूँगा ना उसका टाइटल मिल जाएगा मुझे यहाँ से, कॉमा एंड टोस्ट लेंथ नेक्स्ट इज टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग ये चाहिए, शॉर्ट चाहिए, एंड लास्ट वन इज डॉट शो। देखो अब मैं यहाँ नीचे यहाँ मेनू में जा रहा हूँ, मेनू XML में जा रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ। देखो ये अगर poly ये जो नाम है ना, ये नाम ये टाइटल का है, मीन्स टाइटल इज़ द poly। अगर मैं इस टाइटल को अगर मैं मेरे जावा के कोड में एग्जीक्यूट करता हूँ तो जिसका क्लिक किया हुआ है उसका टाइटल वो वहाँ पे ले लेगा। तो द सेम हैपन्स ओवर हियर कि आइटम डॉट, यार ये क्या कर रहा है कि कोई भी मेनू आइटम के ऊपर जो भी क्लिक इवेंट उसको मिलता है उस क्लिक इवेंट का आइटम डॉट गेट टाइटल ले लेगा। ये जो है ना ये सारे मेरे आइटम्स है, दिस ऑल आर माई आइटम्स। उन आइटम का गेट टाइटल का अगर मैं आइटम डॉट गेट टाइटल करता हूँ तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इंपोर्ट हो जाएगा, और जहाँ पर भी क्लिक होगा उस आइटम का गेट टाइटल इंपोर्ट होगा और यहाँ पे वो दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो जस्ट बिल्ड इट एंड रन इट। locate it, run it। थोड़ा टाइम ले रहा है, अगर नहीं हुआ तो फिर से करो, एक बार वेरीफाई कर लेंगे आ रहा है क्या। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब लोड नहीं हुआ अभी तक हमारा एप्लीकेशन। या इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद जस्ट चेक इट आउट। मेनू को क्लिक किया, मेरे पास 3-4 मेनू को poly को क्लिक किया, यू क्लिक्ड poly। COI को क्लिक किया, यू क्लिक्ड COI। MMIT को क्लिक किया, यू क्लिक MMIT। और आइटम को क्लिक किया तो वो ऑलरेडी उसका बाय डिफ़ॉल्ट आइटम ही है। तो कहने का ये है, ये तो सिंपल कोड है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए ना। हमें बस क्या चाहिए कि हर एक जब भी मैं क्लिक करूँगा ना उस क्लिक का एक अलग इवेंट होना चाहिए। तो वो उस केस में आप केस स्टेटमेंट ले सकते हो, केस स्टेटमेंट यानी कि स्विच स्टेटमेंट्स ले सकते हो। ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट लेने के लिए आप जैसे मैंने आइटम डॉट गेट टाइटल यूज़ किया हुआ है, स्विच केस में आप ले लो आइटम डॉट गेट आइटम ID। तो यूज़र ये वही यूज़ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जो यूज़र जो भी आइटम के ऊपर क्लिक करेगा उसका ID रिकॉर्ड किया जाएगा, और केस स्टेटमेंट में चारों IDs क्या हम लिखेंगे, जो IDs यूज़र क्लिक करेगा वो मैच किया जाएगा केस IDs के साथ, और उस केस में जो भी कोड लिखा हुआ होगा वही एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, इट्स अ सिंपल वन।
तो फिलहाल तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ पॉपअप बटन मेनू प्रोग्राम। तो पॉपअप मेनू बटन प्रोग्राम, यहाँ पे एक सिंपल बटन लिया हुआ है। बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ मेनू डिज़ाइनिंग किया था हमने मेनू डॉट एक्सएमएल में। फिर मेनू ओपन होगा, मेनू ओपन होने के बाद मेनू आप कितने भी बना सकते हो। ईच एंड एवरी मेनू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका प्रॉपरली जो भी कोड रहेगा वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पर एक फॉर सिंप्लिसिटी जस्ट हमने ये किया हुआ। तो आप ये भी कोड यूज़ कर सकते हो अगर आपको सिंपली कुछ प्रिंट करना है या फिर शो करना है यूज़र को, तो आप यू क्लिक्ड पॉली। तो यहाँ क्लिक इवेंट में यहाँ आप जो भी लिखोगे वो ले लेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना B1 के लिए क्लिक इवेंट अलग है और मेनू के लिए क्लिक इवेंट अलग है। पहले B1 क्लिक इवेंट के अंदर मेनू का क्लिक इवेंट लिखना है। इसलिए देखो ये है मेरा ये जो एंड हुआ ना, ये जो एंड हुआ है मेरा, ये जो एंड हुआ है ये मेनू के लिए एंड हुआ है, ये मेनू के लिए। और ये जो मेरा एंड हुआ है ये मेरा B1 के लिए एंड हुआ है। तो B1 का पूरा एंट्री के अंदर हमें मेनू का एंट्री लिखना पड़ेगा। और ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको मत भूलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप ये लाइन नहीं लिखते हो आपका कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। पॉपअप डॉट शो एट लास्ट में लिखना ही पड़ेगा। जब आप अगर पूरा कोड करेक्ट है और अगर आप सिंपली आपने ये लाइन मिस कर दी तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। वहाँ पे देखो डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ एंड बिल्ड करूँगा, बिल्ड एपीके भी बनेगी बिकॉज सिंटैक्टिकली इट्स टोटली ओके, सिंटैक्टिकली भी ओके है लेकिन लॉजिकली ओके नहीं है। बिकॉज जब मैं एग्जैक्टली जाऊँगा माई एप्लीकेशन के पास और जहाँ पे मैं इस मेनू के ऊपर सपोज मैं क्लिक करूँगा तो पॉपअप ओपन ही नहीं होगा। तो पॉपअप यहाँ पे आना चाहिए ना, मेनू का पॉपअप, ये ओपन ही नहीं होगा। क्यों? बिकॉज हमें लिखना पड़ेगा एट लास्ट कि मेनू जब भी मैं क्लिक इवेंट कर रहा हूँ तब पॉपअप डॉट शो, ठीक है। और ये इस बटन के अंदर लिखना है मुझे, बटन के बाहर नहीं लिख सकता बिकॉज बटन का क्लिक इवेंट चल रहा है, उसमें उसको पता चलना चाहिए कि पॉपअप डॉट शो करना है। जैसे मैं पॉपअप डॉट शो लिखता हूँ वैसे ही वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वो मेनू को दिखाई देगा, ठीक है। यू क्लिक poly, coe and MMIT. Is that clear then? It's a very good a simple kind of thing. You can use these things into your projects. Just look at the लाइव में सिंपल है, ये तो ऊपर का पार्ट हमें पता है, बस यहाँ थोड़ा सा ये वाला पार्ट हमें थोड़ा सीखना है। जैसे कि सबसे पहले मैंने B1 को अटैच किया मेरे XML के साथ, फिर B1 का क्लिक इवेंट तैयार किया। B1 के क्लिक इवेंट में मैंने ये 2 लाइन्स लिखे, सिर्फ 2 लाइन्स, ओनली 2 लाइन्स, ठीक है। ये वाला पार्ट तो क्लिक इवेंट का है, लेकिन जस्ट 2 लाइन्स लिखूँगा मैं। क्या लिखूँगा? पॉपअप मेनू ये मेरा इनबिल्ट पैकेज है, उसका मैंने एक आईडी बनाया पॉपअप नाम का। फिर न्यू पॉपअप मेनू किया और उसके अंदर उसको बताया कि ये भाई कहाँ पे काम करेगा। तो ये करेगा मेन एक्टिविटी इस जावा फाइल में, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस ऑपरेटर ओवर हियर, इस जावा फाइल में। और ये बटन के ऊपर ही काम करना है, B1 के ऊपर, किसी और के ऊपर काम नहीं करना है। एंड एक बार मैंने उसको जगह बना ली, स्टोरेज कर लिया, फिर मैं उसको इन्फ्लेट करूँगा। इन्फ्लेट करने के लिए फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था पॉपअप नाम का, मैं यूज़ करूँगा, दैट इज़ अ पॉपअप नाम का ऑब्जेक्ट। एंड डॉट गेट मेनू इन्फ्लेटर, और इन्फ्लेट करने को बोलूँगा किसे? मेरे रिसोर्स फोल्डर के अंदर जो मेनू नाम का डायरेक्टरी है उसके अंदर जो मेनू नाम का XML है उसको मैं बोलूँगा इन्फ्लेट करो।
और बोलूँगा कि ये इसको पॉपअप डॉट गेट मेनू मीन्स उसको ले लो। लेने के बाद फिर ये मेरा जो कोड है ये उस आफ्टर दैट गेट मेनू विल हैपन, तो उस मेनू में जो भी मेनू आएगा उसको क्लिक इवेंट लिसनर करना पड़ेगा हमें। तो सेट ऑन मेनू आइटम क्लिक लिसनर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ ओनली वन मैसेज, दैट इज अ टोस्ट मैसेज, एंड एट लास्ट पॉपअप डॉट शो, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एट डॉट पॉपअप डॉट शो। ओके, इज दैट क्लियर देन?